Hello students, myself Gaurav Mishra. Currently I am teaching chemistry at RG Academy. Today we are going to discuss the solutions of the JEE Main mock test number 49 that was uploaded at NTA National Test Abhyas app today morning, that is 7th of July. This is JEE Main test number 49. So let's begin the discussion of the questions. Here's the first question in front of us. 25 milliliter of 2 normal HCl, 50 milliliter of 4 normal HCl, and V milliliter of 2 molar H2SO4 solution are mixed together and the total volume is made up to 1 liter after dilution. 50 ml of this acid mixture completely reacted with 25 milliliter of 1 normal Na2CO3 solution. The value of V is, so we have to find the volume of H2SO4 solution that was originally taken. First of all, we should note that in this question, the concentration of H2SO4 has been given in molarity and the other concentrations are given in normality. For acids, normality and molarity are related. Normality is X times molarity, X factor times molarity, where X factor refers to the number of H plus ions or OH minus ions that can be produced from one formula unit. For example, HCl and HNO3 can each produce one H plus ion from each formula unit. So for HCl, HNO3, X factor is 1 and hence their molarity is also equal to normality. So we have 25 milliliter of 2 molar HCl solution plus 50 milliliter of 4 molar HNO3 solution. For better convenience, we will work in terms of molarity. We are more comfortable working in molarity. V milliliters of 2 molar H2SO4 solution. If we take all these solutions and find out the moles, then we have 50 millimoles of HCl plus 200 millimoles of HNO3 and 2V millimoles of H2SO4 in 1 liter solution. This is what we have to remember. We have 1 liter solution originally, but for reacting with NO2CO3 we have taken 50 milliliter out of that 1 liter solution. So if we take 50 milliliter out of 1 liter, that means 1 by 20th volume of original solution, 1 by 20th volume of original solution, then moles will also become 1 by 20th. So we have to take 1 by 20th fraction of these millimoles, 50, 200 and 2V. इसका 1 by 20th फ्रैक्शन लेना है. ऐसा करने पर हमें 2.5 मिलीमोल्स HCl, 120 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 10 मिलीमोल HNO3 एंड इसका भी 1 by 20th फ्रैक्शन लिया तो 1V by 10 मिलीमोल H2SO4 मिल जाएगा. अब इनको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास Na2CO3 का सोल्यूशन है 25 मिलीलीटर, 1 नॉर्मल सोल्यूशन. अब Na2CO3 जो है वो उसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है और कार्बोनेट आयन 2H प्लस आयन्स कंज्यूम कर सकता है. सो फॉर Na2CO3 the X factor is actually 2. Hence the molarity of Na2CO3 solution is normality divided by 2. Normality is 1 normal. So we have 0.5 molar Na2CO3 solution of which we are taking 25 milliliters. अगर हम इस molarity को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो हमें
हमें 12.5 मिलीमोल Na2CO3 मिलता है। अब एक बात और समझ लीजिए, HCl और Na2CO3 में जब रिएक्शन होगी तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड होंगे। तो प्रोडक्ट बनेंगे 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। सिमिलरली 1 मोल ऑफ Na2CO3 के साथ हमें 2 मोल ऑफ HN3 रिक्वायर्ड होंगे। ये इसलिए क्योंकि Na2CO3 2H प्लस आयंस कंज्यूम कर सकता है। इस तरह से ये एसिड बेस रिएक्शंस होंगी। जबकि H2SO4 2H प्लस आयन पर फॉर्मूला यूनिट देता है, Na2CO3 2H प्लस आयंस पर फॉर्मूला यूनिट कंज्यूम करता है। Hence we will get Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ये 3 एसिड बेस रिएक्शंस होंगी। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास 2.5 मिलीमोल HCl है, 10 मिलीमोल HNO3 है और V/10 मिलीमोल H2SO4 है और 12.5 मिलीमोल Na2CO3 उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंज्यूम हुआ है। तो ध्यान से समझिए, 2.5 मिलीमोल HCl के साथ जो रिएक्ट करेगा वो Na2CO3 का अमाउंट होगा 1.25 मिलीमोल स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग। ये 2:1 के रेशियो में कंज्यूम होंगे। 10 मिलीमोल HNO3 के साथ 5 मिलीमोल Na2CO3 कंज्यूम होगा। तो ये 1.25 फर्स्ट रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, 5 मिलीमोल सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, टोटल 12.5 मिलीमोल है। अब अगर अपन 12.5 मिलीमोल में से ये दोनों 1.25 और 5 का सम सब्ट्रैक्ट करें, 6.25 मिलीमोल सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 6.25 मिलीमोल ही मिलता है। तो 6.25 मिलीमोल Na2CO3 थर्ड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। ये 1:1 के रेशियो में कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब V की वैल्यू आएगी 62.5 मिलीलीटर्स। तो जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन बिगिनिंग में लिया गया है वो है 62.5 मिलीलीटर्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे क्वेश्चंस पर अगर हम पहले स्टक ना हो तो बेहतर है। वी शुड सॉल्व सिंपलर प्रॉब्लम्स। ऑल्दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बट यू विल हैव टू गिव सम टाइम एंड थॉट टू दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mole of a monoatomic real gas satisfies the equation P times V minus B is equal to RT, where B is a constant. The relationship of interatomic potential and interatomic distance R for the gas is given by. So this equation should actually be compared with the van der Waals equation of state. P plus A by Vm square times Vm minus B equals RT. This is the van der Waals equation of state for real gases. इस इक्वेशन में ये जो A अपॉन Vm स्क्वायर वाला टर्म है, this term accounts for intermolecular attractions. This term accounts for intermolecular attractions. ये वाला टर्म अगर ज़ीरो हो जाए, अगर A ज़ीरो हो जाए तो ये वाली इक्वेशन उसी फॉर्म में दिखाई देगी जिस फॉर्म में इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है। ये जो A वाला टर्म है ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को अकाउंट में लेता है और B वाला टर्म जो है ये एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शंस को अकाउंट में लेता है, पार्टिकल्स के फाइनाइट साइज को अकाउंट में लेता है। ठीक है, अगर अट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी पास आने पर डिक्रीज होती है और रिपल्शंस डोमिनेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पास आने पर इंक्रीज होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे, जब मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होंगे, तब तो उनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान सकते हैं।
क्योंकि तब उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर उनमें अट्रैक्शंस डोमिनेट कर रहे हैं पास आने पर तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और फिर ज़्यादा पास आने पर रिपल्शंस डोमिनेट करने लगेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन रियल गैसेस। पास आने पर शुरू में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और बहुत ज़्यादा पास आने पर फिर इंक्रीज होती है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं। पर यहाँ पर इस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस को तो नेग्लेक्ट किया गया है, ये ए वाला टर्म ज़ीरो है, और अगर ये वाला टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा तो ग्राफ में ये वाला पोर्शन आएगा ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी सीधे सीधे इंक्रीज ही होगी एक लिमिट से ज़्यादा पास आने पर। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तभी हो सकती थी जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी प्रेजेंट हों। तो अगर हम ये चारों ग्राफ्स देखें तो हम देखते हैं कि सिर्फ जो थर्ड वाला ग्राफ है, सी वाला ग्राफ, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं जा रही है, और एक लिमिट से ज़्यादा पास आने पर पोटेंशियल एनर्जी एब्रप्टली इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Right, moving on to the next question. In this question, we have to find the enthalpy of formation of benzene. Calculate the heat of formation of benzene. While we are given the bond energies of carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond, carbon-hydrogen single bond in kilocalories. Also, we are given the heat of atomization of carbon and heat of atomization of hydrogen. So this question has a few demerits in it. फर्स्ट ऑफ ऑल, एटमाइजेशन उस सब्सटेंस का किया जाता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या जो पहले से एटम्स के फॉर्म में ना हो। आप H का एटमाइजेशन नहीं कर सकते, आप H2 का एटमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये जो एंथैल्पी है ये शायद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 होगी, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैशियस हो सकती है। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैशियस है, ऐसा हमें इंटरप्रेट करना है। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H इज इक्वल टू 52.1 किलो कैलोरीज। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, क्योंकि एटमाइजेशन H का नहीं हो सकता है, H2 का हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है। बेंजीन में एग्जैक्टली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। उसके बारे में क्वेश्चन टोटली इग्नोरेंट लग रहा है। चलिए फिर भी जो क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर हमें सॉल्व करना है। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है बेंजीन का। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कोरिस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप समझते हैं कि हमें 1 मोल कंपाउंड बनाना होता है, 1 मोल सब्सटेंस बनाना होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, और वो एलिमेंट्स में लेने होते हैं उनके रेफरेंस स्टेट्स में। जैसे कार्बन का रेफरेंस स्टेट है ग्रेफाइट और हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट है H2 गैशियस। उसके बाद मैं इनको गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करूँगा। क्वेश्चन ने गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करने की कॉरिस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है। तो H2 को कन्वर्ट किया H गैशियस में, और कार्बन ग्रेफाइट को कन्वर्ट किया कार्बन गैशियस में, और उसके बाद हम इनको कंबाइन करके C6H6 बनाएंगे। जब हम यहाँ से C6H6 बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कौन कौन से बॉन्ड्स बना रहे हैं। जब हम एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हम बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन चाह रहा है कि हम इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सारे बॉन्ड्स अकाउंट में लें, ठीक है ना। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहले कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन गैशियस में कन्वर्ट करने का एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है, विच वुड बी 6 × 170.9 किलो कैलोरीज। फिर H2 से 6H गैशियस बनाने का एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। क्वेश्चन यहाँ पर अपन को एक्चुअली एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H गैशियस दे रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अपन को 52.1 किलो कैलोरी को भी 6 टाइम्स करना होगा। फिर अपन गैशियस एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बॉन्ड्स बना रहे हैं। अगर हम मॉलिक्यूल से एटम्स बना रहे होते तो हम बॉन्ड्स तोड़ रहे होते। अभी हम एटम से मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं आप देखिए। अपन 3 मोल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, 3 मोल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं,
और 6 मोल कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. सो दीज आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट वी आर फॉर्मिंग. तो ये 1 2 3 4 5 3 4 5 इन सारी टर्म्स का जो सम है वो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन देगा. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए इक्वेशन बन जाएगी 6 टाइम्स 170.9 प्लस 6 टाइम्स 52.1 माइनस. ये माइनस क्यों लगाया? ध्यान रहे बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक करने में रिक्वायर्ड एनर्जी. तो बॉन्ड एनर्जी हमें एक्चुअली बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी बताती है, जबकि हम यहाँ जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसमें हम बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. बॉन्ड्स फॉर्म करने में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो बॉन्ड ब्रेक करने के एंथैल्पी चेंज का नेगेटिव होगा, इसलिए हमें ये माइनस का साइन इंक्लूड करना पड़ रहा है. 3 टाइम्स 83 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, 3 टाइम्स 140 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, 6 टाइम्स 99 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए. तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हम ऐड करेंगे ना तब हमें अपना एंथैल्पी चेंज मिलेगा, जो कि -75 किलो कैलोरीज आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा. ये कैलकुलेशन आप लोग करके वेरीफाई कर लीजिएगा. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following orbitals are degenerate? This is a simple question. Degenerate orbitals का मतलब equal energy orbitals. Equal energy orbitals. Orbitals belonging to the same subshell of a given shell are degenerate. एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स आते हैं वो सब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं. तो 3D सबशेल के ऑर्बिटल्स 3DXY, 3DYZ और 3DZ², they belong to the same subshell of the same shell, इसलिए डिजेनरेट होंगे. 4DXY की एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी और 5DZ² की एनर्जी उससे भी ज़्यादा होगी. तो ये तीनों की एनर्जी इक्वल है. ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्चुअली 4 कंपाउंड्स में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है. जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, प्रोटॉन को लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी. जिस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन को लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा. अब अगर अपन फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है एक्चुअली, और रेजोनेंस की प्रेजेंस के कारण जो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो ऊपर वाले नाइट्रोजन एटम पर बढ़ रही है. लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इस वाले नाइट्रोजन पर रेजोनेंस के कारण बढ़ रही है. ठीक है. और अगर अपन लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखें, फोर्थ वाला स्ट्रक्चर, ये तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, अगर अपन फोर्थ वाला स्ट्रक्चर देखें तो वो भी इससे मिलता जुलता है. बस उसमें फ़र्क ये है कि CH3 की जगह भी NH2 है. अब जब यहाँ 2 NH2 ग्रुप्स लगे होंगे तो इन दोनों के ही लोन पेयर्स ऊपर वाले नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाले नाइट्रोजन पर काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन दोनों नाइट्रोजन एटम्स की तरफ से हो सकता है, इसकी तरफ से भी और इस वाले नाइट्रोजन एटम की तरफ से भी. अगर यहाँ से रेजोनेंस होगा तो भी ऊपर वाले नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, और अगर इस तरफ से रेजोनेंस होगा तो भी ऊपर वाले नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा. तो फोर्थ वाले कंपाउंड की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी. जहाँ तक थर्ड वाले कंपाउंड का सवाल है, थर्ड वाला जो कंपाउंड है
थर्ड वाला कंपाउंड थर्ड वाले कंपाउंड का बेसिक नेचर कम इसलिए है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक बनाने में काम आ रहा है. लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. तो इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इस नाइट्रोजन एटम पर कम हो गई है. दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और इसको एरोमेटिक बनाने में इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोल है. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर का, और अगर ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड है तो फिर इसकी अवेलेबिलिटी H+ आयंस के लिए सबसे कम हो जाएगी. तो जो थर्ड कंपाउंड है उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा और फोर्थ वाले कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी. बस यही दो चीज़ें अगर हम देख लें तो भी हम ऑप्शन इजीली मार्क कर सकते हैं. फोर्थ वाले कंपाउंड में 2 NH2 ग्रुप्स प्रेजेंट होने के कारण वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, और थर्ड वाले कंपाउंड के एरोमेटिक होने के कारण उसके नाइट्रोजन का लोन पेयर लीस्ट अवेलेबल है और वो सबसे कम बेसिक है. इतना देखकर ही हम आंसर मार्क कर सकते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एसिड बेस इंडिकेटर हैज़ Ka is equal to 3 into 10 to the power minus 5. The acid form of the indicator is red and the basic form is blue. By how much must the pH change in order to change the indicator from 75% red to 75% blue? चलिए इसको अटैम्प्ट करते हैं. इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है ना, वो अपने आप में एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है जिसके एसिड फॉर्म का कलर और बेस फॉर्म का कलर कॉन्ट्रास्टिंग होता है, अलग अलग होता है. तो HIN जो है वो एसिड फॉर्म है और IN- बेस फॉर्म है ऑफ द इंडिकेटर. और इसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Ka है 3 into 10 to the power minus 5, जिसको आगे बढ़ाकर अपन लिख सकते हैं IN- टाइम्स H3O plus is Ka, which is 3 into 10 to the power minus 5. अब देखो 75% रेड और एसिड फॉर्म का कलर रेड है और बेस फॉर्म का कलर ब्लू है. 75% रेड का मतलब क्या है कि रेड फॉर्म, एसिड और बेस फॉर्म जो प्रेजेंट है उनमें से 75 अमाउंट अगर एसिड फॉर्म का है तो 25 अमाउंट बेस फॉर्म का होगा. 75% रेड होने का मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ एसिड बेस है मिलाकर उसमें से 75% एसिड फॉर्म है. ऐसी सिचुएशन में IN- HIN का रेशियो क्या हो जाएगा? IN- 25% और HIN 75%. ये रेशियो हो गया 1/3. ऊपर वाली इक्वेशन से हमें H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है. H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है 1/3 आ रहा है, तो 3 times Ka. और अगर ये 75% ब्लू हो जाए, 75% ब्लू, इसका मतलब IN- HIN, ये 75/25 हो जाएगा, मतलब 3. यहाँ से फिर हमें H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Ka/3 मिल जाएगी. ये आप देख सकते हैं. अगर मैं IN- HIN को 3 सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Ka/3 हो जाएगी. तो 75% रेड होने के केस में 3 times Ka और 75% ब्लू होने के केस में Ka/3. दोनों केस में pH फाइंड करते हैं. pH इन फर्स्ट केस -log H3O प्लस -log 3Ka
pH in second case is minus log Ka/3. क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने चेंज इन pH पूछा है. चेंज इन pH, बेसिकली हमें ये वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट करनी है. सेकेंड वाले pH में से फर्स्ट वाला pH सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. माइनस लॉग Ka/3 माइनस माइनस प्लस लॉग 3Ka. ऐसा करने पर आप देखेंगे कि Ka से Ka कैंसिल हो जाएगा और ये एसेंशियली 2 log 3 आएगा. आप करके देख लें. और 2 log 3 की वैल्यू 2 times 0.477 दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. और इसका डबल अपन अगर करें तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 0.95 आएगी. ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following, the number of reactions that produce benzaldehyde is. तो ये तो एक्चुअली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ये रिएक्शंस अगर आपको ध्यान हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वाली रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है. ये आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं. दूसरी वाली रिएक्शन में वाटर के थ्रू हाइड्रोलिसिस हो रही है और Cl जो है ना वो सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे. ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. Cl वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप्स एंड फाइनली 2 OH ग्रुप्स लगने के बाद वाटर का रिमूवल होगा और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा. थर्ड वाली रिएक्शन रोजनमैन रिडक्शन है. रोजनमैन रिडक्शन ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स चैप्टर में मेंशन्ड है, इससे भी बनेगा बेंजल्डिहाइड. और फोर्थ वाली रिएक्शन भी सेम चैप्टर में मेंशन्ड है. एस्टर्स का पार्शियल रिडक्शन किया जा रहा है यहाँ पर और इससे भी बेंजल्डिहाइड बनता है. तो सारी रिएक्शंस में ही बेंजल्डिहाइड बन रहा है. ऐसा ही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है विच इज़ द फोर्थ ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन एंड 1 bar. प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है और उसके बाद वाटर में इथेनॉल मिलाया गया फ्रीजिंग पॉइंट चेंज करने के लिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वाटर का अब नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा. डेल्टा TF इज I टाइम्स KF टाइम्स मोलैलिटी. अच्छा, इथेनॉल नॉन डिसोसिएटिंग नॉन एसोसिएटिंग है वाटर में, तो वेंट ऑफ फैक्टर 1. KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 क्वेश्चन में दी हुई है, केल्विन किलोग्राम पर मोल. और जो मोलैलिटी है उसके लिए अपन को मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें, उसको किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करना होगा. तो देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है. 34.5/46. आई थिंक दिस शुड कम आउट टू बी 3/4. 3/4 आएगा ये और फाइनली ये वैल्यू 3 केल्विन आ जाएगी. तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन आया, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब 270 केल्विन होगा. सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 270 केल्विन. ठीक है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग अपन को करेक्ट ग्राफ सेलेक्ट करना है. आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है. अगर आप A, B, C और D ऑप्शन देखें तो C और D तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर घटता हुआ दिख रहा है. ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता. और B इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें डेल्टा TF की वैल्यू गलत दे रखी है. डेल्टा TF 3 केल्विन है, जो कि फर्स्ट वाले ग्राफ में सही दिख रहा है. फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली आप सब लोगों ने कर लिया होगा. 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब अगर अपन यहाँ पर देखें, रुबीडियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों के तीनों तो एल्कली मेटल्स हैं. एंड एल्कली मेटल्स आर नोन फॉर देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. एल्कली मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो फर्स्ट ionization energies. On the other hand, scandium, which has a configuration of argon,
3d1 4s2 will have a relatively higher ionization energy, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 4s ऑर्बिटल में से निकलेगा, जो कि 3d ऑर्बिटल्स के द्वारा शील्ड की जा रही है, जो कि पुअर शील्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्कैंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। 4s इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे। इस क्वेश्चन को मार्क करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्पेशली अगर आप ये पहचान लें कि ये तीनों के तीनों बी, सी और डी में जो दिए हुए हैं वो एल्कली मेटल्स हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग सेल concentration of zinc ions is 10 times the concentration of copper ions। तो अपन को डेल्टा जी फाइंड करना है। सबसे पहले तो इस केस में सेल रिएक्शन लिख ली जाए। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयंस का रिडक्शन। तो ये डैनियल सेल कहलाता है और ये डैनियल सेल की रिएक्शन। इस रिएक्शन की कोरिस्पॉन्डिंग एन फैक्टर 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस हो रहा है इस रिएक्शन में, द वे इट इज़ रिटन। अब डेल्टा जी फाइंड करना है, तो याद करें थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और एल एन को अगर लॉग में बदलें तो 2.303 का एक फैक्टर अलग से लगाना पड़ता है। मोर ओवर वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट, और क्यू जो है, क्यू इस रिएक्शन के लिए है जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। एन फैक्टर 2 है, राइट। एफ सब्सटीट्यूट करना नहीं है जैसा कि अपन ऑप्शंस में देख रहे हैं। ई नॉट की वैल्यू 1.1 वोल्ट्स है। 2.303 आर टी, इसमें भी कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना दे रखी है, तो ये रेशियो हो गया 10। बस उसके बाद ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। 2.303 आर टी माइनस 2.2 एफ, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ध्यान रहे log 10 की वैल्यू होती है 1। सो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following products can be obtained formed when 2-chloro-2-methyl pentane reacts with sodium methoxide and methanol? 2-chloro-2-methyl pentane, तो ये है पेंटेन। सेकेंड नंबर पर, सेकेंड कार्बन पर क्लोरो और मिथाइल दोनों लगाने हैं, और इसके बाद इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, CH3O- Na+ इन मिथेनॉल। अब CH3O- जो है यहाँ पर वो एक न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन ने हमसे बस पूछा है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बन सकता है और एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बन सकता है। अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना तब तो क्लोराइड को रिप्लेस करके मेथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा, और अगर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना, बीटा एलिमिनेशन हुआ, E2 एलिमिनेशन हुआ, तो अपने पास डबल बॉन्ड को लाने के लिए कौन कौन से पोजीशंस अवेलेबल हैं ये आप लोग देख लीजिए। डबल बॉन्ड यहाँ लेफ्ट वाली साइड भी आ सकता है और राइट वाली साइड भी आ सकता है। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड। अगर अपन क्रॉस चेक करें विद द ऑप्शंस दैट आर गिवन, then we will see that all the 3 possible products can be formed. Answer is D. Let's move on to the next question. In the following reaction, the major product is 1 equivalent of HBr. सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये कॉन्जुगेटेड डाईईन है, और कॉन्जुगेटेड डाईईन्स में HBr का एडिशन 2 तरीक़ों से हो सकता है, 1,2 एडिशन एज वेल एज 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन लोअर टेम्परेचर्स पर फेवर्ड होता है, ये काइनेटिकली फास्टर बनने वाला प्रोडक्ट होता है, काइनेटिक प्रोडक्ट। और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा बनता है, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए अपन इसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इसको फेवर कर रही है। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज़ अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट।
बट फास्टर बनता है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है किस तरह का एडिशन कराना है, ऐसा कुछ हिंट नहीं है। उस केस में अपन जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वही बनाएंगे, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। सबसे पहले तो अपन H+ का एडिशन इस तरह से कराएंगे कि अपन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकें। तो आप देखिए कि ये वाला डबल बॉन्ड लेफ़्ट वाला या राइट वाला, कहाँ पर अपन H+ आयन पहले ऐड कराएं जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो साफ जाहिर है लेफ़्ट वाले पर बनाना चाहिए। और उसके बाद इसका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो अपन ने बनाया, और इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपन ब्रोमाइड आयंस ऐड कराएंगे। तो ये 1-4 एडिशन प्रोडक्ट हो गया। अगर ब्रोमीन अपन फर्स्ट पोजीशन पर माने तो फिर ये 1, 2, 3, 4th पोजीशन पर H लगा है, 4th पोजीशन पर H और फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन। ये 1-4 एडिशन प्रोडक्ट है। अगर अपन गिवन ऑप्शंस में देखने जाएं तो ये अपन को कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 4th ऑप्शन में। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन? ये तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। 2 डिग्री एल्कोहल्स, 2 डिग्री एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। इस क्वेश्चन को करना आसान रहेगा। 3 डिग्री एल्कोहल्स तो इजी टू ऑक्सीडाइज है नहीं, और 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बन सकता है या एसिड बन सकता है। सेम हेयर। तो 2 डिग्री एल्कोहल अपन को सिलेक्ट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। 14th क्वेश्चन, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसके लिए अपन को थोड़ा थोड़ा फील्ड्स, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड इट विल फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स इन निकल टू गेट पेयर्ड अप। तो निकल जो है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। इसके जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हम 3d में शिफ्ट कर देंगे और इन सब की पेयरिंग भी हो जाएगी, ताकि एक 4s ऑर्बिटल को हम एम्प्टी करवा सकें। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्लोराइड आयन जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसी तरह से आपको चेक करना है। थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और उसकी प्रेजेंस में कोबाल्ट 3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते। लेकिन फ्लोराइड आयंस एक वीक फील्ड लिगेंड है और इनकी प्रेजेंस में कोबाल्ट 3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। Na2O2 में सोडियम आयंस और पेरोक्साइड आयंस हैं जो कि दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक हैं, दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन CsO2 में Cs+ और O2- है। O2- मतलब सुपर ऑक्साइड आयन है, और सुपर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक होता है। सुपर ऑक्साइड आयन में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसको पैरामैग्नेटिक तो होना ही है। तो ये टेट्राक्लोरो निकलेट 2 आयन, और ये 4th वाला कंपाउंड फ्लोराइड आयंस वाला, और ये 6th वाला कंपाउंड सुपर ऑक्साइड आयन वाला, ये 3 कंपाउंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पोजेस कर रहे हैं। तो इसमें 3 पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। 15th क्वेश्चन भी फेयरली इजी क्वेश्चन है। अब इनको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मेटल एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। जिंक एक एम्फोटेरिक एलिमेंट है और ये एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है और दोनों के साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाता है। तो अपन डेफिनेटली इसको मार्क कर सकते हैं।
not a very difficult question by any stretch of imagination. Moving on to the next question. Given that for a reaction of order n, integrated form of the rate equation is this. हमें integrated form of rate equation दे रखा है और हमें 3/4 completion के टाइम और हाफ कंप्लीशन के टाइम मतलब हाफ लाइफ के बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए ये रिलेशन यूज़ करते हैं. पहले 3/4 कंप्लीशन का टाइम फाइंड करते हैं. के को लेफ्ट राइट में शिफ्ट किया और टी 3/4 लेफ्ट में. 3/4 कंप्लीशन के लिए जो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये C0/4 रह जाएगी. सही है ना, तभी तो 3/4 कंप्लीशन होगा. 1/4 कॉन्सेंट्रेशन बचेगी. तो अपन C की जगह C0/4 सब्सटीट्यूट करेंगे. ऐसा करने पर 4 to the power n-1 ऊपर चला जाएगा और C0 to the power n-1 नीचे रह जाएगा. ठीक है. सिमिलरली हाफ लाइफ के लिए जब हमें सॉल्व करना है तो अपन C0/2 सब्सटीट्यूट करेंगे. ऐसा करने पर 2 to the power n-1 ऊपर आ जाएगा. C की जगह C0/2 सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके बाद फाइंड करना है हमें इनका रेशियो, इनका रिलेशन. रेशियो ले लेते हैं. रेशियो लेने पर आप देखेंगे कि ये फ्रंट वाला टर्म कैंसिल हो रहा है. C0 to the power n-1 भी कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा. 4 to the power n-1 -1 अपॉन 2 to the power n-1 -1 बचेगा. अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है. ऊपर वाला जो नंबर है 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. अल्टीमेटली अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 to the power n-1 का स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो आप बचपन से जानते हैं, a + b इंटू a - b, वही यहाँ पर यूज़ में आएगा. इसके चलते ऊपर नीचे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में ये बच जाएगा. तो 3/4 कंप्लीशन का टाइम हाफ लाइफ का 2 to the power n-1 + 1 टाइम होगा. तो ऐसा ही ऑप्शन हमको सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. 17th क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. टेरिलीन जो है, टेरिलीन वो इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक एसिड का पॉलीमर है. और टेरेफ्थैलिक एसिड वो नहीं है जो इस फॉर्मूला में दिख रहा है. टेरेफ्थैलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लगे होते हैं. ये होता है टेरेफ्थैलिक एसिड, राइट. और ये है इथिलीन ग्लाइकॉल. ये मोनोमर्स होते हैं टेरिलीन फॉर्मेशन में. तो डेफिनेटली ये जो इसका मोनोमर यहाँ पर दिख रहा है वो गलत है और गलत वाला ही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना था. चलिए आगे बढ़ते हैं. 18th क्वेश्चन में पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाना है और फिर एक कपलिंग रिएक्शन करवानी है. बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इस जगह बन जाएगा. राइट. और फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे. OH के रिस्पेक्ट में अपने पास जो सबसे सूटेबल पोजीशन रहेगी वो पैरा पोजीशन रहेगी OH के रिस्पेक्ट में. OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है. तो पैरा पोजीशन पर जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इस तरह का एक फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास इमर्ज करेगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है. राइट. 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड विल नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट. तो जो डाइसैकेराइड हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो सकता है अपॉन हाइड्रोलिसिस, हेमी एसिटल में जो कन्वर्ट हो सकता है वो
वो ऑक्सीडाइज हो सकता है टॉलेंस रिएजेंट की मदद से। ठीक है, तो आप देखिए कि P में एक हेमी एसिटल ग्रुप दिख रहा है, जबकि Q में कोई हेमी एसिटल ग्रुप नहीं दिख रहा है। हेमी एसिटल का मतलब एक ही कार्बन पर ईथर ग्रुप भी हो और OH ग्रुप भी हो। ऐसा अपन को P में तो दिख रहा है लेकिन Q में नहीं दिख रहा है। So Q will not reduce Tollens reagent. Second option is the answer. Moving on to the next question. ये fact based question है, environmental chemistry पर based है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट, फ्लोराइड, लैड, नाइट्रेट हमारे बॉडी में कितना मैक्सिमम रह सकता है और उसका कितना अमाउंट हो जाने पर वो हमारे लिए अनसूटेबल हो जाएगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। These things have to be learned from the NCERT textbook. So there's no calculation, no thinking involved, just you have to remember the facts in this question. Fact based question है। चलिए अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन पर आते हैं। The sum of the number of lone pairs of electrons on each central atom in the following species. तो यहाँ पर आपको बेसिकली ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहला वाला जो स्पीशीज़ है टेल्यूरियम, जो है वो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है। टेल्यूरियम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये यहाँ पर 6 बॉन्ड्स बना भी रहा है, पर ओवरऑल चार्ज -2 है। उस -2 चार्ज के चलते हम देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेल्यूरियम पर ही आएंगे। इसके चलते टेल्यूरियम पर एक लोन पेयर हो जाएगा। सिमिलरली BrF2+ जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन एटम को ही बियर करना होगा। ब्रोमीन एटम जब पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा तो उसके बाद 7 की जगह 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगा, बचे 4 का मतलब उस पर आएंगे 2 लोन पेयर्स। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इसमें इन्वॉल्व है। XeF3- में भी आप देखिए फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन नहीं गेन करेगा, ये जेनॉन को गेन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो फ्लोरीन बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। फ्लोरीन बॉन्ड ही इसलिए बना रहा है क्योंकि उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो जेनॉन ने बॉन्ड बनाने में यूज़ करे। उसके पास 8 होते थे और एक उधार का भी मिल गया है, 9 हो गए। 9 में से 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए तो बचे 6 का मतलब जेनॉन पर आएंगे 3 लोन पेयर्स। तो इसमें अपन को ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इन सब के लोन पेयर्स अगर ऐड करें तो हमें टोटल 6 लोन पेयर्स मिल रहे हैं। राइट, सम ऑफ लोन पेयर्स इज 6। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में भी हमें नंबर ही काउंट करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन द रिंग, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से होल नंबर्स में होगी। तो आप देख सकते हैं ये शर्त जो है ये पहला वाला कंपाउंड तो फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, 6, 10, 14 इस तरह से जानी चाहिए। इस वाले मॉलिक्यूल में, इस वाले आयन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, आप देख सकते हैं बनाकर। ये एरोमेटिक है, इसमें तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है। इस वाले मॉलिक्यूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक हो गया। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये नहीं होगा। इसमें अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस लोन पेयर के कारण, ये एरोमेटिक है। ये तो नेफ्थलीन है। एक भी रिंग अगर एरोमेटिक है तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल रिंग्स एरोमेटिक हैं इसके कारण भी ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और स्पीशीज प्रेजेंट। 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the answer. Moving on to the next question. इसमें अपन को रिएक्शन लिखना आना चाहिए। B2H6 की मिथेनॉल से रिएक्शन हुई, डायबोरेन की मिथेनॉल से रिएक्शन,
तो यहाँ पर ट्राई मेथॉक्सी बोरेट एस्टर बनता है BOME होल थ्राइस, ठीक है। एक मॉलिक्यूल B2H6 का ऐसे 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा, ट्राई मेथॉक्सी बोरेट एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और साथ साथ क्या बनेगा 3H, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, 6 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, 6 hydrogen from here and 6 hydrogen from here. On balancing the reaction, total 6 H2 molecules would be formed. फिलहाल क्वेश्चन को अगर देखें तो उसमें अपन को 3 मोल्स डायबोरेन के यूज़ करवाए गए हैं। अगर डायबोरेन के 3 मोल्स होंगे तो बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट जो है वो 6 मोल बनेगा। सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स वी कैन से दैट। तो आंसर्स यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस के होल नंबर्स में आ रहे हैं, पर ऐसा हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट चैप्टर पर बेस्ड है। सॉलिड स्टेट चैप्टर अभी तक अनटच्ड था इस पेपर में। अब यहाँ पर आप देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दे रखा है, FCC स्ट्रक्चर, एज लेंथ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। ओके, सबसे पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। टोटल मास 256 ग्राम्स है, राइट, और डेंसिटी है 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल कितना मिलेगा, 8 से कैंसिल करने पर 32 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल है। अब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल फाइंड कर लेते हैं। 4 × 10⁻⁻10 मीटर है, 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसका क्यूब करना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स कैसे मिलेंगे? लॉजिकल सी बात है, अगर हमें टोटल वॉल्यूम पता हो और एक डब्बे का, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता हो, तो टोटल वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करें। ऐसा करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2 × 10⁻24। इतने तो यूनिट सेल्स हैं, पर ये भी ध्यान रखें कि एक यूनिट सेल में 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स पर FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ़ एटम्स इन टोटल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स करने पर ½ × 10⁻24, 2 × 10⁻24 हो जाएगा। तो 10⁻24 के फैक्टर में फ्रंट में जो नंबर आएगा वो है 2। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन पर। 25th क्वेश्चन में अगर अपन देखें, NH4OH मतलब ये अमोनिया ही है, एक्वस अमोनिया को ही NH4OH कहते हैं। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, NH3 + H3O+ gives and is given by NH4+ + H2O। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 1.8 × 10⁹। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन को जो रिवर्स करने पर वैल्यू मिलेगी वो NH4+ का Ka होगी। NH4+ जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होगा। Ka of NH4+ would be 1/K, मतलब 1/1.8 × 10⁹। अच्छा, अब आपसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। NH3 की वाटर से रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb होगा, Kb of NH3। Kb of NH3 अपन से पूछा है, जो कि अपन जानते हैं Kw/Ka of NH4+ होगा। यही तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के Ka-Kb का रिलेशन है। और Kw है 10⁻14, 1/Ka NH4+ करेंगे तो ये 1.8 × 10⁹ फ्रंट में आ जाएगा, मतलब 1.8 × 10⁻5 हो गया ये। और अपन को 10⁻6 के मल्टीपल की वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम इसको लिख सकते हैं 18 × 10⁻6। क्वेश्चन ने इसी को x × 10⁻6 बोला है।
इसको x इंटू 10⁻⁻6 बोला है तो x हो गया 18. That's the answer of this question. Answer of this question would be 18, right? That's the answer. So this was the paper in nutshell. कुछ questions काफ़ी अच्छे हैं, कुछ questions में calculation involved है. ओवरऑल ये स्टैंडर्ड पेपर है और ऐसे ही पेपर अपन जेई मेन में भी एक्सपेक्ट करते हैं. ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द पेपर वॉज अप टू द मार्क, बट 1 or 2 क्वेश्चंस वर हैविंग अ एम्बिगुअस लैंग्वेज, जैसे वो बेंजीन वाला क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चंस ना हो तो स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा, बट ओवरऑल आई वुड से अ गुड पेपर और इसमें मार्क्स लाए जा सकते हैं. सो होपफुली यू आर डूइंग वेल इन योर टेस्ट्स. मिलेंगे अगले टेस्ट के सोल्यूशन में. थैंक यू वेरी मच.